بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پروگرام تربیت اولاد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہماری مسلسل گفتگو ہو رہی ہے حجت الاسلام عالی جناب مولانا موسی رضا صاحب قبلہ سے، جو ہمیں مسلسل بتا رہے ہیں اولاد کے سلسلے سے کہ آخر والدین کی کیا ذمہ داری ہے اولاد کے لیے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کو جب وائنڈ اپ کیا تھا تو اس میں آپ کو بتایا تھا، ایک سوال چھوڑا تھا خاص کر لڑکیوں کے سلسلے سے، کہ کس طریقے سے سوشل ویب سائٹس کے اوپر یہ لڑکیاں بے حجابی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں مولانا صاحب سے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ مولانا صاحب، آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے۔ مولانا صاحب، آج جس طریقے سے دیکھا جائے دنیا میں سب سے اہم اور سب سے اچھی چیز اخلاق بتایا گیا ہے کہ اخلاق سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، کہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ یقیناً قابل تعریف انسان ہے۔ بے شک۔ تو خاص کر والدین کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں اپنی اولاد کے لیے، کہ اپنی اولاد کو کس طریقے سے اچھا اخلاق دیں، تو اس کے لیے والدین کو کیا کیا اسٹیپ اٹھانا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ نے کیا ہے۔ اس کہ پیغمبر اسلام اپنی بعثت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی جو بلندیاں ہیں وہ میں مکمل کروں، تمام کروں، لوگوں کو سکھاؤں۔ مقصد ہی انبیاء کا آنے کا مقصد ہی ہے کہ لوگوں کے اخلاق کو مقصد جو ہے وہ اچھا بنائیں۔ اخلاق پہلے تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اخلاق میں کون اچھے اخلاق ہیں، کون برے اخلاق ہیں۔ سب سے پہلے تو پیرنٹس کو جو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا ہیں۔ بعض وقت ہم جو ہے وہ کسی قوم کی عادت یا اس کے رسم و رواج کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کہ اخلاقیات میں نہیں، اخلاقیات ایک الگ چیز ہے، عادت اور رسم و رواج ایک الگ چیز ہے، سمجھے۔ لہذا یہ ایک الگ علم ہے۔ باقاعدہ علماء اخلاق ہمارے سامنے جو ہے وہ انہوں نے الگ جو ہے وہ علم بتایا ہے اخلاق کا، کہ اخلاق میں کیا کیا چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ ایثار ہے، قربانی ہے، محبت ہے۔ دیکھیے اب اخلاق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مکارم اخلاق ہے اور ایک محاسن اخلاق ہے۔ محاسن اخلاق یعنی اخلاق کی خوبیاں، اچھائیاں۔ محاسن اخلاق اچھے اخلاق، جیسے آپ بڑوں کو سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یا مثلا جو ہے وہ بڑوں کے سامنے ادب سے ملنا ہے، کوئی مسکرا کے مل رہا ہے تو آپ بھی اس سے مسکرا کے ملیں، یہ سب اچھے اخلاق میں آتا ہے۔ لیکن یہ ہے مکارم اخلاق، اخلاق کی بلندیاں۔ یہ اخلاق کی جو بلندیاں ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے اس میں انسان کو جو ہے وہ تھوڑا سا زحمت کرنا پڑے گا، معلومات کرنا پڑیں گے۔ ائمہ کی احادیث اور پیغمبر اسلام کی احادیث سے مکارم اخلاق کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ مثلا اگر کوئی آپ کے ساتھ قطع رحمی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، یہ مکارم اخلاق ہے۔ آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیں، یہ مکارم اخلاق ہے۔ آپ ضرورت مند ہے لیکن آپ سے زیادہ کوئی ضرورت مند آ رہا ہے تو آپ اپنی ضرورت کو اس کے اوپر جو ہے قربان کر دیں، یہ مکارم اخلاق میں ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ بڑا وسیع موضوع ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا اس لیے کہ وقت کم ہے۔ بہرحال انسان اخلاق کہتے کہ اخلاق وہی ہے کہ جس سے انسان کی جو ہے وہ روح میں سدھار پیدا ہو، سمجھے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ وہ صفات اور وہ کمالات جو انسان کی انسانیت کو نکھاریں، سمجھے، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اب یہ کہ بچوں میں کیسے ہم اخلاق کی تعمیر کریں، کیسے ہم انہیں سکھائیں کہ وہ با اخلاق بنیں، اس کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے خود کو عملاً جو ہے وہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ پیرنٹس کو یا جو بھی جو ذمہ دار ہیں بڑوں کو پہلے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ مثلا اگر ہم یہ سکھانا چاہتے ہیں بچوں کو کہ بچے سلام کرنے کی عادت ڈالیں، ایک اچھا اخلاق ہے، تو اس کے لیے پہلے ہمیں خود جو ہے وہ عملاً جو ہے وہ یہ کام کرنا پڑے گا، ہم خود سلام کریں۔
बच्चों को सलाम करें, उनके सामने बड़ों को सलाम करें, आपस में एक दूसरे को सलाम करें। तो अगर हम खुद घर में जो है वो अमलन जो है बड़ों को सलाम करेंगे, अपने एक दूसरे को सलाम करेंगे, बच्चों को सलाम करेंगे, तो बच्चे खुद ब खुद जो है ये चीज़ जो है वो सीख जाएंगे। चंद आप देखिए पैगम्बर की सीरत में ये मिलता है, पैगम्बर इस्लाम जो हमेशा बच्चों को सलाम करते थे, हमेशा बड़ों के साथ साथ बच्चों को सलाम करते थे। चंद एक हदीस में आप मौजूद है कि 5 चीज़ें मैं मरते दम तक उसे नहीं छोड़ूंगा, है रिया नहीं करूंगा। और उनमें से एक चीज़, एक अमल ये था, पैगम्बर फरमाते हैं कि बच्चों को सलाम करना, मरते दम तक मैं बच्चों को सलाम करना नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर हमें ये सिखाना है कि बच्चे सलाम के पाबंद हों तो हमें खुद पाबंद नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से आप देखें, अगर हम अपने बच्चों को नमाज की तालीम या तरबियत देना चाहते हैं तो पहले हमें नमाज के पाबंद होना पड़ेगा। आप देखिए जिन घरों में नमाज की पाबंदी की जाती है, आप अक्सर उनकी बच्चियों को देखें, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, अक्सर मैंने देखा है कि छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, माँ चादर ओढ़ के नमाज पढ़ रही है तो वही नकल वो करती हैं कि छोटी सी चादर चाहती हैं कि मेरी भी बना दी जाए। माँ अगर नमाज के लिए खड़ी हुई तो फौरन वो भी मुसल्ले पे आ जाती हैं, या अगर बच्चा है तो वो भी, बाप मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो वो भी आ जाता है। और ये जो बचपन से जो है वो बच्चे जब देखते हैं कि हमारे माँ बाप नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, हमारे माँ बाप जो है वो एक दूसरे से जो वो बहुत ही अदब से मिलते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, तो यही बच्चे जो है वो सीखते हैं और उनके ज़मीर में, उनकी रूह में ये बातें जो है वो घर कर जाती हैं। जो बड़े होते हैं तो उन्हें फिर सिखाने की ज़रूरत नहीं कि तुम सलाम करो, वो खुद सलाम करते हैं। उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं कि तुम नमाज़ पढ़ो, वो खुद नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये जज्बा जो है वो, ये जो अखलाकी बातें हैं, ये सिखाने के लिए पहले खुद इंसान को बाअखलाक बनना पड़ेगा, खुद इंसान को जो है वो उस पर अमल करना पड़ेगा, और उसके बाद इंशाल्लाह जो बच्चे भी बाअखलाक होंगे। जैसा माहौल घर का होगा वैसे बच्चे जो डर जाएंगे। बिल्कुल आपने सही बात कही। जिस तरीके से हम भी बच्चे थे, हम भी बड़े हुए, अल्लाह एक पंजतन 5 इमाम 12 मासूम 14, इन अस्माए हुस्ना की साए में हम लोगों ने परवरिश पाई। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि बच्चा जब सुबह सो के उठता है तो सबसे पहले वो टीवी खोलता है, उसमें कार्टून देखता है। कार्टून नेटवर्क देखे बगैर बच्चों को खाना हजम नहीं होता, और इसके लिए भी जिम्मेदार वालिदैन ही हैं। जिस तरीके से आपने अखलाक की बात कही, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि जियो इस तरीके से कि जब दुनिया में रहो तो लोग तुमसे मिलने के मुश्ताक रहें, और मर जाओ तो लोग तुम्हें याद करें। हकीकत है मौलाना साहब। अभी एक सवाल है जो इसके पहले के एपिसोड में मैंने एंड में किया था, लड़कियों के सिलसिले से, ख़ासकर जो आज मुआशरे समाज में देखा गया है लड़कियों के सिलसिले से, कि आज सोशल वेबसाइट्स के ऊपर जिस तरीके से लड़कियां बेहिजाबी का मुजाहिरा कर रही हैं, आज एक डीपी की शक्ल दे दी गई है, व्हाट्सएप यूज़ हो रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर डीपी लगाई जाती है। कि अगर देखा जाए लड़कों, हत्ता है कि लड़कों तक तो ये बात फिर भी ठीक है, लेकिन लड़के और लड़कियों में बहुत फ़र्क है। लड़की किसी के घर की जीनत है, तो लड़की अगर किसी के घर की जीनत बनना चाहती है तो सबसे पहले उसको ये बेहिजाबी का मुजाहिरा ख़त्म करना हो, उसके लिए क्या स्टेप उठाना चाहिए, खासकर ये लड़कियों को बता जी। ये ज़ाहिर सी बात है कि आज की मॉडर्न दुनिया की बहुत बड़ी बीमारी है, और हमारी वो बच्चियां जो हिजाब करती हैं लेकिन वो भी इस चीज़ को नहीं समझती हैं, और बाज़ वक्त जो है वो अपने फ़ोटोज़ और अपनी पिक्चर्स जो वगैरह जो है वो डाल देती हैं। देखिए, हिजाब का मतलब ये नहीं है कि जब आप घर से बाहर निकलें तभी आपके सर पे स्कार्फ होना चाहिए और तभी आप जो है बुर्का पहने या चादर पहने। हिजाब यानी अपने को नामहरम से बचाना, उसकी निगाह से महफूज रखना है, हिजाब का मतलब है। तो अपने को नामहरम से बचाने का मतलब ये है कि आप अगर इंटरनेट पे हैं तब भी आपको ऐसी पिक्चर्स, ऐसे फ़ोटोज़ डालने से आपको जो परहेज़ करना चाहिए कि जो नामहरम आपकी फ़ोटो देखें। कुजा बेरसत आप बेपर्दा और बेहिजाब वाली जो है पिक्चरें जो है आप वो फेसबुक पे या इंटरनेट पे डालें, असलन शरअन जायज़ नहीं। उलमा और हमारे महाराज कराम जो है इस बात का असलन जो है वो हुक्म देते हैं कि शरअन इंटरनेट पे भी कोई लड़की किसी भी नामहरम लड़के से बात नहीं कर सकती है, समझ, शरअन जायज़ नहीं है। और ख़ास कर अगर जो है वो एहतमाल है कि उसकी वजह से वो गलत
काम में पड़ जाएगी, गलत फेल में जो है वो उलझ जाएगी। तो असलन बात करना जो है वो उलमा इजाज़त नहीं देते बात करने की। कुछ आप ऐसा कि अपनी फ़ोटो आप एक दूसरे को जो है वो तहवील करें और दें, एक दूसरे को फ़ोटो दें, या इंटरनेट के ज़रिए से जो है वो अपनी फ़ोटो वहाँ पहुँचाएँ, वो उनकी फ़ोटो अपने उसमें लगाएँ। ये एक बहुत बुरी बला है हकीकत में जो है वो। और इस पर भी जो है वो पेरेंट्स को जो है वो होशियार रहना पड़ेगा। जब तक वो ये सब जो है वो लड़कियां ठीक है इस्तेमाल करें, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि नामहरम लड़कों से जो है ज़्यादा बातचीत न करें, बल्कि करें ही नहीं, असल जायज़ नहीं है। उलमाए और फुक़हा ने इस बात की इजाज़त नहीं कि नामहरम लड़कों से मर्दों से बात कीजिए, चलन जायज़ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरी चीज़ जो आपने हिजाब का हवाला दिया है, हिजाब के हवाले से अगर आप देखें तो बहुत ही मैं अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ, हमारी कौम में, हमारे माशरे में जिस तरह से हिजाब करने वाले हिजाब की तौहीन है। जी, जो लोग बेहिजाब हैं बात उनकी नहीं कर रहे, वो तो गलत काम कर ही रहे हैं, कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है, रवायात और अइम्मा की अहादीस और उनकी सीरत के ख़िलाफ़, वो तो है ही है। वो अफराद जो हिजाब कर रहे हैं, वो अफराद भी हिजाब की तौहीन कर रहे हैं। आप देखिए, हिजाब का मतलब क्या है? हिजाब का मतलब ये है कि एक औरत या एक बच्ची जो बालिग हो गई है, हिजाब जो है वो 9 साल से जो वाजिब हो जाता है, अपना पूरा जिस्म नामहरम से छिपाए, सिर्फ चेहरा खुला रख सकती है, हाथ कलाइयों तक खुले रख सकती है, इसी तरह से पैर भी टखनों तक जो है वो उतने खुले रख सकते हैं। बस वो भी अगर जो है वो फसाद में पड़ने का डर नहीं है। अगर चेहरा खुला रखने से अगर समाज में फसाद फैल रहा है तो उलमा ने कहा है कि वाजिब है कि आप चेहरा ढकें, खुसूसन जो है वो आधा चेहरा ढकना ज़रूरी है अगर फसाद फैलने का डर है। लेकिन अगर फसाद फैलने का डर नहीं है और आमतौर से हर जगह राइज है और लोग तवज्जो नहीं देते हैं तो ठीक है, चेहरा खुला रहे। लेकिन आज आप देखिए हमारे यहाँ समाज में जिस तरह से हिजाब किया जा रहा है, स्कार्फ है सर पे लेकिन बाल खुले हुए, स्कार्फ सर पे है, गरेबान जो है वो खुला हुआ है, स्कार्फ सर पे है लेकिन हाथ मसल जो है वो बाजुओं तक खुले हुए हैं, हाँ, या आधे हाथ खुले हुए हैं। आप देखिए स्कार्फ सर पे है लेकिन बहुत ही टाइट जीन्स पहनी हुई है, बहुत ही टाइट जो है वो शर्ट पहने हुए हैं, जिससे तमाम नशीब व फराज जो है वो जिस्म का पूरी बनावट जो है वो लोगों पे जो है आया। ये हिजाब नहीं है। इसी तरह हमारी बात ख़वातीन है कि वो एक चादर जो है वो एक इधर से लिया इधर डाल दिया, सर खुला हुआ है, सीना खुला हुआ है, हाथ खुले हुए हैं, बस वो एक चादर डाल दी और वो ये समझ नहीं कि मैं हिजाब कर रही हूँ। हकीकत में वो हिजाब नहीं है बल्कि हिजाब की तौहीन है। हिजाब का मतलब है कि आप अपने पूरा सर छिपाइए, आप अपने पूरा जिस्म छिपाइए, हत्ता कि जो है वो टाइट लिबास मत पहनिए। भले आप अपने ठीक है आप आस्तीनें यहाँ तक की हैं, स्कार्फ भी पूरा है, लेकिन टाइट जीन्स टाइट शर्ट पहने हुए हैं जिससे आपका नशीब व फराज जो है जिस्म की पूरा जो है वो उतार चढ़ाव जिसे कि जो है वो बाहर वो सब लोगों पे न आया है। वो हिजाब नहीं है, वो हिजाब की तौहीन है जिससे लोगों की शहवत या ख्वाहिशात बढ़ के, समझे। इसी तरह से मसला जो है वो बाद लोग कहते हैं कोई शलवार जंपल हम पहन लें और उसे हिजाब नहीं, शलवार जंपल भी हो तो वो भी ढीला ढाला हो जिससे आपके जो है वो तमाम नशीब व फराज और उबार वो सब जो है वो ढक जाए। तो हमारे यहाँ जो है वो हिजाब की भी हिजाब करने वाले तौहीन कर रहे हैं। अफसोस तो ये है कि वो ये समझते हैं कि मैं हिजाब कर रही हूँ, अब ये उन्हें मालूम नहीं है, ये आमदन ये काम करती हैं, हालांकि वो हिजाब नहीं वो तौहीन है जिसे कहिए, समझे आ गया। इसी तरह से मसलन जो है वो हमारी बच्चियाँ भी जो वो आज एक फैशन चल गया, स्कार्फ सर पे डाल लिया और बकिया जो है वो हाथ खुले हुए हैं और वो सारी चीज़ें जो है मसलन जो दिखाई दे रही हैं और समझती है कि वो हिजाब है। हिजाब नहीं है, हिजाब प्रॉपर हिजाब होना चाहिए, वही अल्लाह है कि वो हिजाब की तौहीन है। इस चीज़ में बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात आपने बताई है। हकीकत में नाज़रीन कहीं मौजू से ना भटक जाए, मौजू हमारा चल रहा है बच्चों की तरबियत के सिलसिले से, ये हमारा इसी मौजू में ही आता है क्योंकि ये भी एक तरबियत है। ज़रूरी है कि घर में, और इसके लिए भी देखिए एक बात मैं आपके काटूँ कि इसके लिए भी ज़रूरी है कि माएँ पहले हिजाब करें
पर्दा करें, फिर लड़कियां जो है वो पर्दा करेंगी। लेकिन अगर कोई माँ ही हिजाब नहीं करेगी तो बेटी को कैसे कहेगी कि वो तुम हिजाब करो, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है कि शरा में बाद औरतें जो एक सिन पे पहुंच जाती है, मतलब 50 साल या 60 साल हो गई, तो अब उनके ऊपर से पर्दा साकित है। अगर वो पर्दा ना भी करें तो गुनहगार नहीं है, ठीक है ना। अपनी जीनतों को बहरहाल छिपाएं, लेकिन फर्ज अगर सर खुल भी गया तो वो है। लेकिन हम ये देख, और जो लड़की जवान है उस पर वाजिब है पर्दा, लेकिन हम इसके बरक्स देखते हैं कि जो 60 साल 70 साल की 50 साल की ऊपर खवातीन है वो तो पूरा अपना पूरा जिस्म जो ढके रहेंगी, हत्ता कि चेहरा भी छुपा रहेंगे। लेकिन जो उनके पहलू में उनकी पोती चल रही है, उनकी लड़की चल रही है जो जवान है, जिसको पर्दा करना वाजिब है शरन, वो पर्दा नहीं कर रही। ये भी अजीब बात है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये मुआशरे में दिख रहा है, ये हकीकत है। ये इंसान भी एक हकीकत में एक पुतला हो गया है, जैसे कठपुतली वाला नहीं चल रहा है कि पहले वो कठपुतली का नाच होता था, तो वही सब सामने नजर आ रहा है। मौजू से हट जाएगी, वरना ये चीजें जो है बड़ी जरूरत है। मौजू बहुत ज्यादा वसी हुआ जा रहा है, बहुत फैले जा रहा है। मौलवी साहब देखिए, जिस तरीके से देखा जाए, अभी पिछले एक सवाल था हमारा कार्टून नेटवर्क से रिलेटेड था। छोटे बच्चे हैं, कार्टून शो आते हैं, बेशक देखें, उनके लिए मना नहीं, लेकिन जरूर देखें। अगर उसके अंदर कार्टून के अंदर कोई तरबियती चीज, कुछ दीनी या कुछ हमारे लिए फायदेमंद चीज है तो उसको जरूर देखें, लेकिन उसमें ये सारी चीजें नहीं है, तो इसके लिए क्या करें वालिदैन खासकर? हाँ देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाइए, ये जो बच्चों की फितरत है कार्टून देखना, ये जो है वो सेम एक है। आप हिंदुस्तानी बच्चा हो, ईरानी बच्चा हो, अमेरिकन बच्चा हो, अफ्रीकन बच्चा हो, कार्टून अगर टीवी पे आ रहे हैं तो वो सब छोड़ के जो है वो बैठ जाएंगे। मैं अक्सर बच्चों को देखा, खुद मेरी फैमिली में बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि अब दिन भर अगर वो टीवी खोल दिए, कार्टून उनके सामने लगा दिए, तो ना उनको भूख लगती है, ना उनको प्यास लगती है, आपने सही बात की। ना उनको माँ की फिक्र, ना बाप की फिक्र, कौन आया कौन गया, उनको किसी मतलब ही नहीं, वो कार्टून पे लगे हैं, समझे। ये भी एक जैसे कि सामाजिक ताकतों की जो है वो एक साजिश है कि किस तरह से किया जाए, बकाया जाए और माँ बाप के इख्तियार से उनको आज़ाद कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत काम किया जा रहा है। लिहाजा कार्टून, अक्सर जो कार्टून हमारे हिंदुस्तान में आ रहे हैं या और भी यूरोपियन ममालिक में, वो कार्टून ऐसे नहीं होते हैं कि जिससे बच्चा कुछ तरबियत उसकी हो सके, वो कुछ सीख सके। हाँ ठीक है, अब इस्लामी ममालिक में भी एक ले दे के वही अगर कहा जाए तो वही इस्लामी जमहूरिया ईरान है, तो शायद वहाँ कार्टून इस तरह से बनते हों या जो तरबियती हों। पहले है कि इस वक्त हम ये नहीं कह सकते हैं कि कार्टून से कोई बच्चा कुछ सीख सकता है, बल्कि इसके बरखिलाफ मैं देखता हूँ कि कार्टून ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा जो जिद करता है, माँ बाप की जवाब देता है, माँ बाप के मुकाबले में आ जाता है, पढ़ाई नहीं करता है और फिर चीटिंग करता है, सारे इस तरह से कार्टून बनाए जाते हैं। कुल मिला के नुकसानदेह साबित हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा पेरेंट्स को होशियार रहना पड़ेगा। ठीक है, आप एकदम से बच्चों को मना तो नहीं कर सकते हैं कार्टून ना देखें, लेकिन बच्चे जब कार्टून देखें तो माँ बाप को उनके साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। बेशक बहुत ज़रूरी है माँ बाप का बैठना, माँ हो या बाप हो, कोई भी साथ में बैठे, ताकि बच्चा जो कार्टून देख रहा है, अगर वो गलत कार्टून मैसेज गलत दे रहा है तो वहाँ पेरेंट्स जो है बच्चे को बताते रहें कि बेटा ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं किया जाता है, ये गलत बता रहा है, ठीक ना। तो कार्टून देखें एक बात, दूसरे के उसका टाइम मुअय्यन करें। ये नहीं कि बस हम अपने काम के लिए, हम अपनी आज़ादी के लिए, बाद वक्त माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपनी आज़ादी के लिए बच्चों का, जैसे कहिए जो है वो बर्बाद करते हैं बच्चों को, कि बच्चों को कार्टून लगा दिया और फिर अपने आज़ाद हैं, घूम रहे हैं। नहीं, आपको अपनी आज़ादी पे लगाम लगाना पड़ेगा और बच्चों के साथ वक्त देना पड़ेगा। कार्टून देखें, एक टाइम मुअय्यन कर दें, रात में दिन में एक टाइम मुअय्यन कर दें, 1 घंटा आधा घंटा कार्टून देखना है। और उसमें भी देखें, कार्टून चैनल बहुत से हैं, उसमें देखें कि जहाँ अच्छे मैसेज हों या अच्छे मैसेज हों लेकिन कोई ख़राब बात ना हो, ठीक है ना। तो ऐसे कार्टून चैनल्स जो लगाएं और बच्चों को दिखलाएं, लेकिन जब तक बच्चे देखें उनके साथ बैठे रहें माँ बाप, ताकि बच्चे अगर कोई गलत हरकत कर रहे हैं कार्टून देख के तो उसको समझाएं, उससे रोकें, उसको मना करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि कार्टून ना देखें, इसलिए कि ये आज ऐसी बला है कि इसको आप रोक नहीं सकते हैं, मतलब किसी बच्चे को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इतनी एहतियात बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम मुअय्यन हो। ये नहीं कि दिन भर उनको या 3-3 4-4 घंटे बैठे हुए कार्टून देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम मुअय्यन करें, आधा घंटा 1 घंटा मनोरंजन के लिए, जो है वो ज़हनी तफरीह के लिए बच्चे देख लें। लेकिन जब देखें
तो साथ में कोई बुजुर्ग बैठा रहे ताकि उसको जो है वो गाइड करता रहे, गलत सही क्या है। हम ऐसा मसलन ठीक है कार्टून देख रहे हैं, बाद वक्त आप देखिए कि कार्टून देखते हैं बच्चे वैसी हरकतें करने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। वैसी उचक फान, वैसे उछल कूद, वैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं, वैसे ही मसलन जो हरकतें कर रहे हैं, तो ये सब बहुत मुज़िर है। लिहाजा एक बुजुर्ग वहाँ पर बैठा रहे या कोई भी समझदार जो बच्चे को जो है वो समझाता रहे, और अगर कोई गलत हरकत कर रहा है बच्चा तो उसको रोके उससे। ये सारी चीज़ें, एहतियात बहुत ज़रूरी है, तब तो वो कार्टून दिखलाएं, और अगर एहतियात नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि बच्चे को जो है वो रोकें। बहुत साहब बहुत अच्छी बात बताई, खासकर कार्टून नेटवर्क जो इस वक्त हम प्रॉब्लम नहीं कहेंगे इसको, लेकिन सॉल्यूशन भी हो सकता है अगर इसके अंदर कोई अच्छी चीज़ आए तो बेशक उसको देखिए। और कोई भी आप देखिए, आज दुनिया भर में ना जाने कितने इस्लामिक टीवी चैनल्स हैं। मैं खासकर अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ जो टीवी पर मौजूद हैं, कि वो जो प्रोग्राम्स खासकर जैसे हम लोग इस टाइम, मैं चैनल्स के मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उसके ऊपर भी कार्टून के जैसे ही प्रोग्राम्स जो दीनी प्रोग्राम्स हैं वो बना बना के बाकायदा दिखाए जा रहे हैं। हमारा चैनल विन है, देखिए चैनल विन पे भी जो है वो बात हमने देखा है कि अच्छे कार्टून जो है वो आते हैं जी। तो कोशिश करें कि बच्चों को जो है वो ऐसे चैनल्स पे जो कार्टून फिल्में या कार्टून तारीखी एतबार से बात कार्टून दिखलाते हैं, या वाक़यात के एतबार से या नसीहत के एतबार से बस हमने चैनल विन पे देखे हैं, तो ऐसे दिखलाएं बच्चों को, ऐसे कार्टून दिखलाएं कि जिससे बच्चा कुछ नसीहत और कुछ जिससे अदब सीखे। बेशक बेशक, बिल्कुल सही आपने कहा। और साहब फिलहाल वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है और इंशाअल्लाह हम लोग फिर हाजिर होते हैं, क्योंकि नाज़रीन बात चलती है तो बढ़ती चली जाती है और बहुत सारे सवाल हैं जहन में और उसके जवाब भी बहुत ज़्यादा वसी हो जाते हैं। फ़िलहाल अब मुझे और मौलाना साहब को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह मैं हसन आसिफ और हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मूसी रज़ा साहब क़िबला हमारे साथ फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफिज़।